Okay, so let me record. So how many participants are there? 40. Very good. So कितनी भी श्रेष्ठ वाजीकरण की दवा होगी, the object of pleasure is the best vajikaran in a male, and this is what we see even today also, right? The object of pleasure, what uh, the it is not the case that the female is not attracted to the male, but our culture is such that the females have always been put into restrictions. Our females have always been put into restrictions, so that is why the expression of sexual interest or the expression of a sexual desire is more in the male. The male talks more about sexuality than the female. So that is why the male is more expressive and the desire is more powerful in the male rather than the female. The female is always taught to control the desire, always taught to control the desire. Rather, the whole culture has, I mean, things are changing, but the whole culture has been pinpointed that sex is something which is bad, or intercourse should is something which is bad. Of course, we have a lot of legalities there. For example, the POSCO Act is there, which prevents any sexual crime against children. Then we have rape laws, which prevent any sexual crime against females mostly, and nowadays even male cases have been coming up. So all these things are legalities just to ensure that the society should function properly. But if you have an adult male and an adult female who are both in consensus means both agree to do something, and at the same time they have not committed their what you can say, they are not committed into any marriage. So at that time, probably, and these are the things which you will come across in your general practice. Okay, these are the things which you will come across in your general practice. That, see, if a wife and a husband is married and he commits or he has an extramarital affair, then he commits adultery. Adultery is a crime. Adultery is a ground for divorce. Okay. But if you have a 22-year female and a 24-year male who are not married but want to commensurate the act of intercourse, then it is perfectly legal. It is perfectly legal. So this is one aspect. But we were discussing that Vajikaran means three Shrestha hai. So when you are in front of a Stri, and it is not only for a male, please don't misunderstand me. The whole Shastra is written in a male focus. But वाजीकरण में स्त्री ही नहीं पुरुष भी श्रेष्ठ होता है, प्रोवाइडेड द फीमेल हैज अ डिजायर. तो क्यों श्रेष्ठ होता है? बिकॉज सभी पांचों इंद्रिय स्त्री शरीर में एक साथ होते हैं, और जो पुरुष को दे विल बी एबल टू fulfill the indriya desires. See, when you are having intercourse with the other person, what you are seeing him, you are feeling him, you are smelling him. Rather, we were talking about, I remember we were talking about the different ways of attraction. Okay. So today, what are the different ways of attraction? Today, the different ways of attraction are maybe good clothes, good manners, a good lipstick, a good mascara, eyeliner, eyelashes, and all. Not, I don't do makeup, and I don't like makeup, so I don't know much of it. But these are the facets, or these are the facets which we use for attraction. Okay, attraction of opposite gender or opposite sex. But what was the basic natural way of attraction?
व्हाट वाज द बेसिक नेचुरल वे ऑफ अट्रैक्शन? अगर आपने मतलब अदर एनिमल्स को देखा है, इफ यू हैव सीन अ काउ और अ बुल बीइंग अट्रैक्टेड टू द काउ, और अ डॉग बीइंग अट्रैक्टेड टू अ बिच, और अ हॉर्स बीइंग अट्रैक्टेड टू अ मेयर, व्हाट मतलब जो कुतिया है वो थोड़ी लिपस्टिक लगा के आती है, वो तो कपड़े भी पहने नहीं होती, right? So what was the basic way of getting attracted towards the opposite gender? It was smell. It was smell. Even before clothes and lipstick and all these came into existence, the the human race also used smell as a first moment of attraction, or first reason for attraction towards the opposite gender, and which has been proven. There are pheromones which are released from the sweat glands, particularly the sweat glands of the armpits and the groins, particularly the sweat glands of the armpits and the groins, which are actually the which are actually the attractive forces between two genders. Attractive forces between two genders. Okay, so that is why Gandha is mentioned. Roop, because a person will get attracted only after seeing something. So that is why Roop is mentioned. Varna, even which is today, इवन टुडे काला लड़का सफेद लड़के से ज्यादा गंदा दिखता है, या काली लड़की सफेद लड़की से ज्यादा, मतलब गोरी लड़की से कम सुंदर लगती है. सो वर्ण इज समथिंग विच वी हैव बीन, क्या कहते हैं उसको, वी हैव बीन अट्रैक्टेड टू, और वी हैव बीन वी हैव. अब केरला में या यहाँ जो लोग होते हैं उनको बेचारों को ऑप्शन ही नहीं होता, बट otherwise in India, for those people who have a wheatish complexion, they would be more attracted towards a more wheatish or more क्या कहते हैं उसको, सफेद गोरे कलर से ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो वर्ण भी उसमें आता है. तो ये सभी स्त्री शरीर में एक साथ रहते हैं, या सभी पुरुष शरीर में एक साथ रहते हैं, इसीलिए स्त्री और पुरुष वाजीकरण में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सभी इंद्रियां जो हैं वो एक साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं. Attraction of the opposite, that is a natural law. Rather, attract similar gender attraction was considered to be illegal till 2019. Even today it is illegal in India. Okay, but most of the countries have started now legalizing. Attraction of the opposite was a natural way of propagating the species. So why I am focusing more on these slides, because I want you to understand the whole concept of sexuality and Vajikaran then and now. क्योंकि इसके आगे वाले जो स्लाइड्स हैं पूरे तीनों पाद, मतलब आप ये वाला पाद पकड़ो, इसके आगे वाला आसक्ति शीर्षीय पाद पकड़ो, या उसके आगे वाले दोनों पाद पकड़ो, ये सभी पाद जो हैं इसमें सिर्फ कल्प ही कल्प है, सिर्फ कल्प ही कल्प, बाकी कुछ नहीं है. So unless and until you focus or you understand the concept of sexuality or the concept of Vajikaran in today's life, and because Kalpa you can read, Kalpa you can use, Kalpa you can see, but the concept you need to understand. So probably in the next lecture we'll finish all the rest three. आज के lecture में we'll finish the first part. आगे वाले lecture में we will, most probably I am going to take an extra lecture tomorrow so that we finish Vajikaran tomorrow. So ये जितने भी पाद हैं ये पाद एक लेक्चर में खत्म हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कल्प ही कल्प है, ठीक है, बट द कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो अट्रैक्शन ऑफ द अपोजिट, व्हाई? बिकॉज unless and until a male and a female gamete fuse, the nature doesn't allow the species to propagate. दो स्पर्म्स आपने एक साथ ले आए, आप कितना भी टेस्ट ट्यूब में ट्राई करो, यहां करो वहां करो, जो भी करना है करो, जो भी करना है करो, बट it is not possible for the species to propagate. And that is why it is said that धर्म अर्थ काम और मोक्ष में स्त्री के बिना अधूरापन है. आज भी धर्म में जब हम
कोई भी यज्ञ में बैठते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में स्त्री होती है। ठीक है, जो बिना शादी वाला आदमी है उसको किसी भी यज्ञ में बैठने को मना किया है, और अगर बैठते हैं तो क्या करते हैं, वो सुपारी लगा के बैठते हैं। ठीक है, अर्थ, अर्थ मतलब रिसोर्सेस, अर्थ डजेंट ओनली मीन मनी, अर्थ मीन्स रिसोर्सेस। तो all the resources which you have are well managed by the female, are well managed by the female। पुरुष जो है, बहुत कम पुरुष जो होते हैं वो व्यवहारी होते हैं, but earth is well managed by the female, that is why bringing a resource is the function of a male, and utilizing or distributing a resource was always the function of a female। The female was the head of the रिसोर्सिस ऑफ द हाउस। लकड़ी कितनी यूज करनी है, ग्रेन्स कितने यूज करने हैं, किसको कितना खाना देना है, कब क्या खाना देना है, ये सब अर्थ में आता है। काम, काम तो फीमेल के बिना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, काम तो फीमेल के बिना पॉसिबल ही नहीं था। इफ यू सी, masturbation has not been mentioned in Ayurveda, because and that is why we feel, or that is why it is mentioned that, और मास्टरबेशन को उन्होंने गलत माना है, अयोनि संबंध। जब आप चिकित्सा स्थान में पढ़ोगे व चिकित्सा स्थान में योनि व्यापक चिकित्सा पढ़ोगे, तो वहां पर अयोनि संबंध को रोग का कारण बताया है। तो इट वाज सिंपल दैट मेनी अ टाइम्स, many a times नहीं, all the times they were expecting intercourse to happen with the female only। ayoni sambandha means ayoni sambandha of same species। so that is again why, because each male organ is designed for the particular species vagina, designed, I say designed। तो इसीलिए काम जो है, वो काम स्त्री के बिना अधूरा है, और मोक्ष भी स्त्री के बिना अधूरा है। अब आई एम नॉट गोइंग टू मोक्ष, बिकॉज इट इज अ कंसेप्ट विच आई पर्टिकुलरली और पर्सनली डोंट बिलीव। आई बिलीव दैट जो भी अच्छा करना है यही करना है, और जो भी भोग के जाना है यही भोग के जाना है, उसके लिए दूसरा जन्म लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा, बुरा नहीं करो तो बुरा नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा होगा, बट बुरा नहीं होगा। तो मोक्ष इज अगेन समथिंग विच इज नॉट, विच इज इनकम्प्लीट विदाउट द स्त्री। स्त्री कैसी होनी चाहिए? सो आयुर्वेद डिस्क्राइब्स अ गुड स्त्री एज रूपवती, गुणवती, युवती एंड आभूषित। Rupavati, everybody understands. Gunavati, everybody understands. Yuvati, everybody understands. Abhushit is well dressed. The personality who can carry the beauty, who can show off the beauty। और कालिदास को अगर आप देखो तो कालिदास सुंदर युवती की, हाउ डज कालिदास डिस्क्राइब अ सुंदर युवती? He says, Sundar Yuvati is Shyama Prasanna Varna Megha, Shyama Prasanna Vadana Meghavarna Sukesha। श्यामा प्रसन्न वदना मेघवर्णा सुकेशा, ऐसे स्त्री का वर्णन किया गया है। श्यामा इज अ स्लाइटली, श्यामा मतलब काली नहीं, श्यामा मतलब स्लाइटली मोर व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, अ डार्क कॉम्प्लेक्शन। प्रसन्न वदना, वदन मतलब मुख, प्रसन्न मतलब अ, खुश, खुश दिखने वाला। आज भी जब हम घर पे आते हैं, थक हार के आते हैं, सो बहुत सारे पिक्चर में या सीरियल्स में दिखाते हैं कि भाई तुम मेरा स्वागत हंस के करती हो, मेरा सब थकान उतर जाता है। सो प्रसन्न वदना, मेघवर्णा, सुकेशा, बाल लंबे होने चाहिए, ऐसा उन्होंने, मतलब अभी के में नहीं बोलता। नाउ वी हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फैशंस एंड पीपल आर अट्रैक्टेड टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फैशंस, बट दैट टाइम हेयर वाज अ, द, मतलब सर के जितने लंबे बाल होते थे, दैट वाज अ एसेट। और वशी, वशी बताया है, वशी मतलब किसी भी मेल को
अट्रैक्ट करने जैसी, किसी भी मेल को अट्रैक्ट करने जैसी, काम शास्त्र में निपुण। काम शास्त्र में निपुण मतलब शी शुड हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ अट्रैक्शन। शी शुड हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ अट्रैक्शन। मुझे याद है वो उत्सव, उत्सव था पिक्चर का नाम। रेखा और शेखर सुमन, पिक्चर का नाम था उत्सव। अगर मिला तो जरूर देख लीजिए। काम शास्त्र में निपुण, काम शास्त्र में राजा भर्तृहरि, भृतहरि, भर्तृहरि, और दूसरा मतलब वात्स्यायन। ये दोनों के वर्क्स जो हैं, दीज आर वन ऑफ द ब्यूटिफुल वर्क्स ऑफ सेक्सोलॉजी। वन ऑफ द मतलब modern medicine has never regarded sexology as an art, but if you get to read, शायद होगा हमारे लाइब्रेरी में, काम शास्त्र के लिए दो बुक्स आर, एंड आई फील दैट ईच ऑफ द मेल एंड फीमेल शुड रीड दिस टू बुक्स। राजा भर्तृहरि का एक बुक आता है, और एक आता है वात्स्यायन का काम शास्त्र। ठीक है। और कला में निपुण होनी चाहिए। कला में निपुण, ना व्हाट इज कला? कला इज अ स्किल, कला इज एन आर्ट। सो शी शुड बी एबल टू सिंग और ड्रॉ। पूरे टाइम में 16 विद्या और 64 कलाओं का वर्णन है। और कला मतलब स्किल कौन सी? खाना बनाना भी एक कला है, कपड़ा सीना भी एक कला है। तो ये सभी कलाओं में निपुण होनी चाहिए। वाई? बिकॉज शी हैज टू मैनेज द रिसोर्सेस, शी हैज टू मास्टर द आर्ट, शी हैज टू मास्टर द कॉमर्स। तो इसीलिए ऐसी स्त्री जो है, जो आपके घर को ठीक रखे, आपको खुश रखे, आपको प्रसन्न वदन से स्वागत करे, आपके रिसोर्सेज को मैनेज करे, ऐसी स्त्री वाजीकरण में श्रेष्ठ होती है। ठीक है। अब ये बाकी सब तो ठीक है। राइट नाउ वी हैव मोर फोकस्ड ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट, वी आर मोर फोकस्ड ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट, but Ayurveda has also mentioned the artistic aspects of the female for her to be a good vajikar. तो इसीलिए जितने भी मेल हैं इस क्लास में, जो बहुत कम है, तो मेल्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई मतलब शादी से पहले आप जरूर से ये देख लीजिए कि उसका मतलब फीमेल का बर्ताव कैसा है, बर्ताव कैसा है। ठीक है। कला निपुण है क्या, रूपवती है क्या, गुणवती है क्या, ठीक है, आभूषित है क्या, वेदर यू आर अट्रैक्टेड टू हर, ऑल दीज थिंग्स मैटर। बिकॉज इफ यू सी राइट नाउ, द amount of divorces in India is also rising. If you see, amount of divorces in the last 10 years have grown up threefold, तीन गुना बढ़ गए। So if you have the biggest the biggest achievement in life is to get a good life partner, somebody who will not only stand by you, attract you, satisfy you, but also be with you for the rest of your life. ठीक है। कभी कभी कॉलेज लाइफ में ये करता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, इसलिए मुझे मालूम है कि डोंट don't marry a person whom you can live with, marry a person whom you cannot live without। ठीक है। सो marriage is one of the most important institutions in culture, Indian culture, and we should be proud of it. But at the same time, a wrong marriage destroys life and years of life. And that is why Vajikaran is important, because Vajikaran or the sexual activity is what combines or places together the male and the female for a long time. Okay. So this is why the Stri is Shrestha. Now we come to Vajikaran ke mool uddesh. Vajikaran was done, or Vajikaran was done to copulation. Was the basic function of copulation was Santana Prapti. Okay, Santana Prapti. That means copulation was done only for getting an offspring. We did not have any contraceptive measures in those times. So, Uttam Santana Prapti was the
basic aim of Vajikaran. And even today, leave aside humans, all animals, man is a social animal, so all animals do intercourse for santana prapti. Rather, santana prapti or the propagation of the species has been cultured or has been nurtured, put into the basic instinct of animals. The next is putra prapti, because पुत्र इज नोन टू, मतलब राणा प्रताप से लेके मेरे घर तक सबको ऐसा लगता है कि वंश चलना चाहिए. एंड वंश, बिकॉज वी आर अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी इन विच द फीमेल मूव्स फ्रॉम द फादर्स होम टू द हस्बैंड्स होम. दैट इज वाई पुत्र इज, बिकॉज पुत्र तो हमारे साथ रहेगा, बेटी तो चली जाएगी. तो इसीलिए पुत्र प्राप्ति वॉज द मोर फोकस. लीव असाइड अदर थिंग्स लाइक बुढ़ापे में साथ देगा और ये सब चीज, वो तो छोड़ दो. पुत्र वॉज द मेन फोकस बिकॉज हमारा वंश चलना चाहिए. फिर वाजीकरण का और एक उद्देश्य है स्त्री को सुख देना. बिकॉज वॉट चाणक्य सेज दैट, एक मिनट मुझे याद आने दो. ओके, चाणक्य सेज दैट स्त्री को पुरुष से दुगनी भूख लगती है. भूख मीन्स हंगर, भूख लगती है. 4 गुना लज्जा आती है. पुरुष से स्त्री को 4 गुना ज्यादा लज्जा आती है. 8 गुना ज्यादा धैर्य होता है स्त्री में. 8 गुना स्त्री में धैर्य होता है. किसी भी चीज को सामना करने की जो क्षमता है वो 8 गुना होती है. और 16 गुना रति या 16 गुना सेक्सुअल एपेटाइट होता है. द एंड दिस इज व्हेन आप, मतलब if you feel that you are satisfying a female or you are satisfying your wife, it is wrong, because 16 गुना उसकी इच्छा है आपसे, 16 गुना. इसीलिए कल्चर ने क्या किया है, इसीलिए कल्चर ने स्त्री पे रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं. कल्चर ने स्त्री पे रिस्ट्रिक्शन डालने का बेसिक उद्देश्य यही है, क्योंकि उसकी जो काम वासना है वो 16 गुना होती है. तो इसीलिए स्त्री को 16 नहीं लेकिन 4 गुना तो सुख दे, इसीलिए वाजीकरण किया जाता है. पुरुष को सुख प्राप्ति करने के लिए, पुरुष को सुख प्राप्ति करने के लिए तो समझने का यही नहीं है. मतलब if you study intercourse, what happens, 1 minute, only 9 minutes remaining, so let me first put up the just give me one moment. Unfortunately, I forgot to copy the attendance link. So here is the attendance link in your chat box. So we were discussing about intercourse. When you are doing intercourse, पुरुष को orgasm is the peak satisfaction level which a person can reach in the sexual act, that is orgasm. पुरुष को orgasm सिर्फ एक बार आता है, वेरे स्त्री को कंटिन्यूअस orgasms आते रहते हैं. स्त्री को कंटिन्यूअस orgasms आते रहते हैं. इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि 16 गुना उसकी सेक्सुअल एपेटाइट होती है. तो पुरुष को सुख प्राप्त करना इज वन थिंग, स्त्री को सुख देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्त्री को सुख देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज व्हाई वाजीकरण इज मोर फोकस ऑन द मेल रादर देन द फीमेल, बिकॉज स्त्री का तो एनीवे 16 टाइम्स सेक्सुअल एपेटाइट है. इट इज द सेक्सुअल एपेटाइट ऑफ द मेल विच हैज टू बी इंक्रीज्ड. ध्यान रखिए, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है वाइवा में कि वाजीकरण पुरुषों के लिए ही है क्या. तो यू हैव टू गिव ऑल दीज रेफरेंसेस कि सर ये ऐसा है. क्षुधाणाम द्विगुणम स्त्रीणाम लज्जाणाम च चतुर्गुणम धैर्याणाम अष्ट. हाँ ग्रीना बोलो, बोलो नहीं मतलब लिखो.
अगर कुछ पूछना चाहती है तो। नहीं, गलती से हाथ हो गया, ओके। तो अम, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो क्षुधानाम द्विगुणम स्त्रीणाम लज्जाणाम च चतुर्गुणम धैर्याणाम अष्टगुणम चैव कामाणाम षोडश गुणम स्मृतम, ऐसे चाणक्य ने कहा है। श्लोक याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि भूख 2 गुना, उसके बाद लज्जा 4 गुना, धैर्य 8 गुना, और काम वासना 16 गुना रहती है स्त्री में। तो काम वासना को सेटिस्फाई करने के लिए पुरुष को भी उस लेवल पे लाने का प्रयास किया जाता है जिसके लिए वाजीकरण सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। तो अब ऐसे वाजीकरण करने के लिए या ऐसे वाजीकरण प्राप्त पुरुष को किस स्त्री से संबंध करना चाहिए वो बताया है। अतुल्य गोत्री, हर एक का गोत्र होता है, हर एक का गोत्र होता है। जैसे मेरा कौशिक है, किसी का और कोई होगा, किसी का और कोई होगा, तो हर एक का गोत्र होता है। गोत्र इज द लीनिएज। नाउ इन साइंस यू हैव लर्न समथिंग विच इज नोन एज द डोमिनेंट जीन एंड द रिसेसिव जीन। Okay, dominant gene and the recessive gene. So if two dominant genes meet together, the chances of the disease is increased. Whereas if there is a recessive gene and a dominant gene which is non-recessive, मतलब जिसमें ये नहीं है, रोग का चांस नहीं है, तो द रोग के चांस, स्पेशली इन थैलेसीमिया, थैलेसीमिया is the most common disease in which the dominant recessive factor functions. तो दिस लीनिएज डिस्क्राइब्स कि कौन सा जीन किसमें डोमिनेंट होगा। अतुल्य गोत्री में यूजुअली जब इंटर गोत्र मैरिज करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज द डोमिनेंट जीन इज हेल्दी एंड द रिसेसिव जीन इज अनहेल्दी। सो द डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन होता है, रिसेसिव जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता। इसीलिए अतुल्य गोत्र में, ये मैंने शायद लास्ट ईयर आपको अतुल्य गोत्रीय अध्याय में भी बताया था। तो अतुल्य गोत्र में शादी करने को बोला है, या अतुल्य गोत्री स्त्री के साथ संबंध करने को बोला है। हर्षिणी, जिसको देख के ही हर्ष आए, देख के ही हर्ष आए। नाउ हियर हर्ष डजंट मीन आनंद, हियर हर्ष मीन्स इरेक्शन, हियर हर्ष मीन्स इरेक्शन। रजोमुक्ता, रजोमुक्ता मतलब जिसकी मेंसिस जो है वो रुक गई है। दैट डजंट मीन शी शुड बी मोर देन 40, शी शुड नॉट बी इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। और निरोगी स्त्री से संबंध करने को बोला है, मतलब जिसको कोई भी टाइप का व्याधि नहीं हो। अब इससे ही क्यों संबंध करने को बोला है? अतुल्य गोत्री बिकॉज द डोमिनेंट रिसेसिव, हर्षणी बिकॉज ही शुड फील लाइक हैविंग एन इंटरकोर्स। रजो मुक्ता क्यों? बिकॉज रज के टाइम पे इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ बेबी। एंड निरोगी स्त्री क्यों? क्योंकि जिसके धातु अच्छे हैं तो उत्तम संतान प्राप्ति होगी। तो दैट इज वाई निरोगी स्त्री से संबंध करने को बोला है। नाउ दे हैव डिस्क्राइब्ड कि अपत्य क्यों जरूरी है, वाई इज अपत्य, और वाई इज द ऑफस्प्रिंग नेसेसरी। अपत्य जरूरी इसलिए है क्योंकि उस जमाने में the only thing they had is the number of people in the tribe. The tribe used to be stronger, or the tribe used to be powerful depending upon the number of strong people in the tribe. तो इसीलिए अपत्य रहित पुरुष को उन्होंने फल रहित वृक्ष या गंध रहित वृक्ष, छाया रहित वृक्ष, अकेला वृक्ष, सूखा तालाब, चांदी जैसा सीप, मतलब है तो वो सीप लेकिन दिखता है चांदी जैसा, विलोमित दीप, विलोमित मतलब जो दीप तो है लेकिन बुझ गया है, घास के पुतले जैसा, निस्सहाय, अप्रतिष्ठित, एकेंद्रीय, निष्क्रिय, मतलब जितनी गालियां देनी थी सब दे दी कि भाई तू शादी नहीं, जितनी गालियां हमारे माँ बाप देते हैं ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो जितनी जितनी गालियां माँ बाप देते हैं उतनी सब गालियां उन्होंने दे दी। और मतलब अच्छी अच्छी गालियां दी है, देखो, हाँ, चांदी जैसा सीप, विलोमित दीप, सूखा तालाब, फल रहित वृक्ष, गंध रहित वृक्ष, छाया रहित वृक्ष, सूखा हुआ मतलब घास का पुतले जैसा जिसमें कोई ताकत नहीं है, निस्सहाय। अगर मेरा कोई बेटा नहीं है और मुझे 4 लोग मारने को आए तो सिंपल है, मैं निस्सहाय हूं, मैं तो मार खा के घर पे चलाऊंगा।
अप्रतिष्ठित, जिसको लोग ज्यादा इज्जत नहीं देते, निष्क्रिय, जो ज्यादा काम नहीं कर सकता, काम मतलब कार्य, कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे अपत्य रहित पुरुष को बताया है। और अपत्य सहित पुरुष को कैसे बताया है? मूर्तिवंत। मूर्तिवंत मतलब वाह वाह, क्या 13 बच्चे, 14 बच्चे, वाह वाह। मैं जिनसे आयुर्वेद सीखने जाता था, मुझे याद है, उनके फादर को 16 बच्चे थे, 16 बच्चे, ठीक है। और ये सबसे बड़े थे, नहीं, इनसे तीन बहनें बड़ी थी। तो जो सबसे बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी बहन, उसका लड़का और इनका सबसे छोटा भाई, इनका सबसे छोटा भाई और इनकी सबसे बड़ी बहन का लड़का, इसमें 6 साल का अंतर था। मतलब पहले इनकी बड़ी बहन प्रेग्नेंट हुई, फिर इनकी मां प्रेग्नेंट हुई, 6 साल बाद भी, ठीक है। ये स्तुत्य है। स्तुत्य क्यों है? बिकॉज द फर्टिलिटी ऑफ द मेल एंड द फीमेल हु डिराइव्ड दैट ऑफस्प्रिंग वाज स्टिल गुड। तो अपत्य युक्त पुरुष के लक्षण बताए हैं। मूर्तिमंत, जिसको लोग बहुत सारा वाह करें, बहुमुख, चारों ओर जिसकी चर्चा हो। सव्यूह, सव्यूह मतलब जो स्ट्रेटेजी बनाने में या कोई काम करने में क्रियावान, काम करने में जो, अब काम करने में मजबूत क्यों है? क्योंकि आज हम हमारे फादर्स को उलट, मतलब उल्टा आंसर करते हैं, उस टाइम पे नहीं करते थे। उस टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू अवर पेरेंट्स एंड वी शुड ट्राई टू कीप इट इवन टुडे ऑल्सो। तो क्रियान मतलब डैडी ने बोल दिया कि भाई जाओ उस खेत को जोत के आ जाओ, तो सभी भाई चले जाएंगे, 2 दिन 3 दिन में खेत को जोत के आ जाएंगे, तो वो क्रियावान है। स्तुत्य है, जिसकी स्तुति होती है। मंगलमय है, सभी एक साथ रहते हैं, तो पूरा मंगलमय वातावरण में रहते हैं। धन्य है, वीर्यवान है, और बहुशाखा वृक्ष जैसा अपत्य युक्त पुरुष के लक्षण बताए हैं, ठीक है। सो वी स्टॉप हियर एंड इसके आगे कल्प चालू हो जाते हैं, विच वी विल टेक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। आई नो द नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बोरिंग, ओके, बट प्लीज अटेंड इट। हम फटाफट कर लेंगे। और इफ पॉसिबल प्लीज रीड ऑल द कल्प एंड कम,